گنبد خضرا ان آنکھوں میں کاجل بن کے رہتا ہے کہ گنبد خضرا گنبد خضرا ان آنکھوں میں کاجل بن کے رہتا ہے اور ان کے کرموں کا لمحہ لمحہ ان کے کرموں کا لمحہ لمحہ بادل بن کے رہتا ہے ان کے کرموں کا لمحہ لمحہ بادل بن کے رہتا ہے۔ اور بہت پیارا شعر ہے، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کہ داناؤں سے افضل ہے اور بیناؤں سے بہتر ہے کہ داناؤں سے افضل ہے اور بیناؤں سے بہتر ہے اور ان کی گلی کا جو دیوانہ ان کی گلی کا جو دیوانہ پاگل بن کے رہتا ہے ان کی گلی کا جو دیوانہ پاگل بن کے رہتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بھی تم میرے دیوانے کو دیکھو گے تو مست دیوانگی میں جھومتا رہے گا سبحان اللہ۔ دیوانہ ہمیشہ مست رہتا ہے اور جو نبی کے دیوانہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیوانہ ہو تو آقا کی گلیوں کا بھی وہ دیوانہ ہوتا ہے سبحان اللہ۔ آقا کی دیوار جس گلی سے آقا گزرے ان گلیوں کا بھی دیوانہ ہے، جھومتا ہے، دیوانہ مست ملنگ رہتا ہے سبحان اللہ۔ کہ ان کی گلی کا جو دیوانہ پاگل بن کے رہتا ہے کہ مجھ تک کوئی غم آ جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ واپس سے کہتے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ آپ تھک رہے ہیں، ہمیں لگ رہا ہے ٹھنڈک تو ہے ہی ہے لیکن کم سے کم اتنا محبت سے بیٹھو تاکہ ہم بھی بولیں آپ بھی بولیں اور جب ہم بولیں گے تو آپ بھی بولیں گے تو پڑھنے میں سننے میں مزہ آئے گا۔ ابھی حضرت کا خطاب ہونا ہے، ہمارے حضرت علامہ مولانا استاد محترم وہ بھی تشریف فرمائے، حضرت علامہ مولانا انور رضا وہ بھی تشریف فرمائے، شاعر اسلام بھی اسٹیج پہ جلوہ فروز ہے۔ میرے دوستو یہ ناچیز آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے تشریف فرما ہے۔ اے میرے پیارے بھائیوں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اگر تمہارے دل میں ہے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب اور میدان محشر میں بھی کامیاب ہو۔ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھا، ذرہ برابر خدا کا ڈر اگر دل میں تمہارے ہے تو دنیا کی چیز تمہیں ستا نہیں سکتی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، جو دیوانے ہوتے ہیں، وہ تو کسی چیز سے نہیں ڈرتے بلکہ اگر خوف ان کے دل میں ہوتا ہے تو خدا کا ڈر ہوتا ہے، آقا کا پیار ہوتا ہے۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا اور لوگوں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ہم ایمان والوں کے ساتھ میں ہو جائیں جو سچے لوگ ہیں۔ اے اللہ رب العزت، سچے کون لوگ ہیں؟
कौन लोग हैं सच्चे? पता लगता है हमारा बाप भी झूठ बोलता हुआ नजर आता है, रिश्तेदार भी झूठ बोलते नजर आते हैं, तो कौन सच्चे हैं मौला तू ही फैसला फरमा दे। अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला मुझे कोई समझ में नहीं आता, बाप की तरफ देखता हूँ वो भी झूठ बोलता है, चचा की तरफ नजर डालता हूँ वो भी झूठ बोलता नजर आता है, कोई रिश्तेदार है उसकी तरफ नजर डालता हूँ वो भी झूठ बोलता। ए मौला तू ही फैसला फरमा दे। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान पाक में, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनु मअस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। ए परवरदिगार आलम सच्चे कौन लोग हैं, किसके पास जाएं, किसकी जमात में शामिल हो जाएं? अल्लाह फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह ने फरमाया मेरे प्यारे ओए लोगों सुन लो, जो मेरे नेक बंदे हुआ करते हैं, जो मेरे खौफ अपने दिल में रखते हैं, मुझसे डरते, मेरे नबी से मोहब्बत करते हैं, जो मेरा नेक बंदा होता वली हुआ करता है, वो किसी चीज से नहीं डरता, ना तो उसके दिल जो मलाल है वो डरता नहीं किसी चीज से, अगर डरता है तो उसके दिल में खुदा का डर है। सुभान अल्लाह। और जो लोग अल्लाह से डरते हैं वही सच्चे लोग हैं, वही ईमान वाले हैं, उनकी जमात में आ जाओ, इंशाअल्लाह सच्चों के साथ रहेंगे, इंशाअल्लाह अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छे काफिले में रहेंगे, तो इंशाअल्लाह यही काफिला जन्नत में जाएगा। तो इंशाअल्लाह जो ईमान वाले होंगे जब जन्नत में जाएंगे तो हम भी ईमान वालों के साथ में जन्नत चले जाएंगे। जब हमारा ईमान होगा, और ईमान कितनी प्यारी दौलत है, ये सारी दौलतें फेल बेकार, लेकिन ईमान की दौलत जिसके पास है वही कामयाब है। सुभान अल्लाह। ए मेरे प्यारे दोस्तों, दुनिया में रहकर 4 दिन की जिंदगी में अल्लाह का जिक्र कर लो, अल्लाह की इबादत कर लो। अल्लाह ताला ने तुम्हें बेशुमार दौलत दिया, धन दौलत अता फरमाया, तुम्हें जिंदगी खूबसूरत अता फरमाई, दिन भर में 2-2 मरतबा 3-3 मरतबा खाना खाते हो। अल्लाह का शुक्र अदा करो, मौला एहसान है कि तूने मुझे 2 मरतबा खाना खिलाता है, 3 मरतबा खाना खिलाता है। और मेरी माँ बहनों तुम भी अपने रब का एहसान मानो। जब भी अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कोई अच्छी नेमत अता फरमाए, कोई खुशी अता फरमाए, तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा किया करो। कोई भी नेमत अल्लाह ताला अगर तुम्हें दे, कोई खुशी अता फरमाए, तो अल्लाह तबारक व तआला का एहसान मानो, उस नेमत का शुक्रिया अदा करो। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान पाक में, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और मेरी दी हुई नेमतों का खूब चर्चा करो। खूब चर्चा करोगे, जितना भी अल्लाह की दी हुई नेमतों का चर्चा करोगे, उतना ही अल्लाह और उसमें इजाफा करता रहेगा और खूब अता करेगा। अगर अल्लाह ताला तुम्हें दौलत से नवाज दे, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर तुम्हें सेहत से नवाजे तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें औलाद अता फरमाए, चाहे बेटा हो या बेटी हो, अगर तुम्हें अल्लाह ताला अता फरमाए, अल्लाह का शुक्र अदा करो। ए परवरदिगार आलम पालनहार, तू ही सारी कायनात को संवारने वाला, ए मालिको मौला, ए परवरदिगार आलम, तूने सारी चीजों को अता फरमाया। मैंने औलाद मांगी, औलाद अता कर दिया। मौला मैंने ताकत अता तलब किया, मौला ताकतवर बना दे। अल्लाह ने तुम्हें ताकतवर बना दिया, अल्लाह ने तुम्हें अक्लो ज़हन अता फरमाया, ईमान वाला बनाया, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। मौला तेरा एहसान है, तू मुझे 3 वक्त खाना खिलाता है, अच्छे से अच्छे कपड़े देता है। ए मौला तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है। लेकिन अफसोस है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज हमारा हाल क्या है, हमारी माँ बहनों का भी हाल होता है। आज हमारे अल्लाह ने हमें जो सब कुछ दिया है, 2-2 मरतबा खाते भी हैं, अल्लाह ने अच्छा से अच्छा कपड़े भी दिया, अच्छा लिबास अता फरमाया, सेहत और तंदुरुस्ती भी दिया है, लेकिन तब भी मेरे दोस्तों हम अल्लाह की नाशुक्री करते हैं। बताओ मेरे दोस्तों, अल्लाह फरमाता है बंदा कितना जो है झूठ बोलता है, मैं अपने बंदे को खूब देता भी हूँ, लेकिन तब भी मेरी नाशुक्री अदा करता है। अल्लाह तबारक व तआला उसकी जिंदगी में जो है कामयाबी नहीं, उसकी जिंदगी में रोग लग जाता है। अल्लाह ताला उसको ऐसी जिंदगी देता है कि ऐसे मेरे दोस्तों जिसके पास अल्लाह सब कुछ दे और तब भी हम उसकी नाशुक्री अदा करें, तो मेरे दोस्तों वो जिंदगी किस काम की है, वो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं तुम्हें जितनी भी जिंदगी मिले, उस जिंदगी में अपने रब को याद कर लिया कर, अपने रब को
याद किया करो, अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना हो। आज हम अच्छा से अच्छा खूब खाते हैं, तब भी अपने रब को नहीं याद करते। याद करो जानवरों को कि अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करते। बेज़बान जानवर जिनकी आवाज हम नहीं पहचान सकते, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र जानवर कर रहे, परिंदे कर रहे, चरिंदों परिंदे सब अल्लाह की पाकी बोलते, तस्बीह बोलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र जर्रा जर्रा बोलता है, पाकी बोल रहा। एक इंसान ऐसा है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो रहा है। अपने रब को याद करो। अपना वक्त पता लगता है कि अल्लाह ने हमें जिंदगी दिया तो खुराफात में गुजार दे। कयामत के दिन जब रजिस्टर मैदान महशर में हिसाब होगा, ये रजिस्टर सामने रखा जाएगा। बताओ हम क्या मुंह दिखाएंगे अपने रब को, क्या मुंह लेकर के जाएंगे? बताओ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब अल्लाह कहेगा अपने नामे अमाल खुद पढ़ लोगों के सामने, आज हम छुप के गुनाह करेंगे मेरे दोस्तों, जानते कोई नहीं देखेगा, लेकिन कयामत का दिन होगा, मैदान महशर होगा। उस वक्त जब रजिस्टर पढ़ेंगे, वहाँ चचा भी होंगे, अब्बा भी होंगे, दादा भी होंगे, सब लोग होंगे। उस वक्त मेरे दोस्तों अल्लाह के महबूब पैगंबर भी होंगे, अंबिया अलैहिस्सलाम होंगे, औलिया किराम भी होंगे, जिनसे हम दिखावा मोहब्बत करते हैं। ए मेरे दोस्तों, कहते हैं वो आशिक रसूल है, कोई कहता हम आला हज़रत के मानने वाले, कोई कहता हम मदारी हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ए मेरे दोस्तों, वाकई जिसको सच्ची मोहब्बत होती है वो गुनाहों से दूर रहता है, गुनाहों से दूर रहता है। लेकिन मेरे दोस्तों आज हम गुनाहों में अगर पड़े, कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा रजिस्टर पढ़ो। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्तों? वहाँ तो गुनाह लिखे होंगे, हम क्या करेंगे? हमारा दफ्तर नेकियों से खाली होगा, गुनाहों से भरा होगा, हम क्या मुंह लेकर के जाएंगे? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, ए बंदे पढ़, तूने दुनिया में क्या किया है? उन लोगों को बुलाओ जिनके ऊपर तू फूलता था, उन लोगों को बुलाओ जो दुनिया में जो कहता था कि ये मेरी मदद करते हैं, ये मेरी मदद कर देंगे। एक दूसरे को पावर लगा करके, पैसा दे करके अपना काम दुनिया में बना लेते थे। लेकिन आज वो लोग कहाँ गए हैं? जो पैल्टी किया करता था, जो शराब नोशी किया करता था, जो ताशबाजी खेलता था, उन लोगों को बुलाओ, कहाँ गए हैं? अल्लाह अकबर, पार्टी लगाओ। जिस तरीके से दुनिया में तुम शराब के लिए लोगों को इकट्ठा करते थे, आज उन्हीं को बुलाओ। आखिरकार मेरे दोस्तों बुजुर्गों, क्या अंजाम होगा? भयानक अंजाम। जहन्नमियों को खाना ऐसा दिया जाएगा, इतना भयानक खाना। अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल इज्जत के जहन्नम से डरो मेरे दोस्तों, जहन्नम की आग से डरो। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, ए फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, बेशक उस जहन्नम की आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। एक पत्थर भी जो है अल्लाह की याद में रोता है। आपने पहाड़ियों से गुजरा होगा, आप पहाड़ियों से आपका गुजर होता होगा, देखते हैं कि बगैर वहां के यानी बगैर नहर के पत्थरों से पानी पहाड़ियों से गिर रहा है। ये क्या है? ये पत्थर जो है अल्लाह की याद में रोते हैं, अल्लाह के कहर से डरते हैं, कहीं मुझ पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल ना हो जाए। पत्थर भी अल्लाह की कहर से डरते हैं। लिहाजा मेरे दोस्तों, हम इंसान होने के बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला का खौफ नहीं रखते। अल्लाह अकबर, अल्लाह हमें हम सबको हिदायत अता फरमाए। मेरे दोस्तों, अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखो। अल्लाह ने पहले आगाह कर दिया, पहले ही बतला दिया, ओ मेरे